देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि जारिया माह की 12 तारीख को क्रिसमस भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसके लिए उपल की भगायत में 2 एकड़ अराजी के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि इस माह की 13 तारीख को कपड़ों की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने तमाम मज़ाहिब के अहम त्योहारों की निशानदेही करते हुए सरकारी तौर पर मनाने का एहतमाम किया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में क्रिसमस त्यौहार हुकूमत की निगरानी में तमाम हलकों में एहतमाम किया जाएगा। స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడానికి డిలే అవుతుంది కాబట్టి కొంత తొందరగా ఇవ్వాలనేటువంటిది చెప్పినాము. దాని ప్రకారం మన కమిటీ ఏదైతుందో మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సనత్ నగర్, అమీర్పేట్, మన బల్కంపేట ఏరియా లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే సరే సపరేట్గా చేసుకున్నా పర్లేదు, కలిసి చేసుకున్నా పర్లేదు. సనత్ నగర్ అయితే అంతా కలిపి లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే వెల్ఫేర్ సెంటర్లో చేసారో అట్లా వేసుకుంటాం. మన పోయి కూడా జయరాజ్ గారు మీకు యాజ్ యూజువల్గా మీకు లాస్ట్ టైం ఏదో అడిగారు, అది ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకెక్కడన్నా అంటే కొంత పరిసరాలు పెట్టు కూడా అందరినీ చూడండి, చిన్న చిన్న చర్చస్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా మాట్లాడి చూడండి. ఇది అయిపోయింది. రామ్ గోపాల్ రెడ్డి ఇద్దరు లేదు, కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇవ్వండి. మీకేంటంటే ఈసారి టైం కూడా ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా తక్కువ పడ్డది అనేది లేకుండా మీరు కూడా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. నాకు పెట్టి పెద్దలు లేదు, మీదంటే కొన్ని చేసుకుంటారు. అమీర్పేట మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోండి. బేగంపేట ఒకటే కదా, ఎస్పీజీ అంటే కలిపి కదా, మీకు ఎస్పీజీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము, మీరు అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అయితే మీకేంటంటే మేము ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాం, అది బెస్ట్ ఎక్కడ అనుకొని ఎస్పీజా లేకపోతే ఇక్కడ ఎస్పీ దగ్గర ఎక్కడ లేదు అమీర్పేట అక్కడ చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మీరు హ్యాండ్ రెండో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ అందరికీ ప్రతి చర్చ్లో రిజిస్టర్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ చర్చ్లో రిజిస్టర్ ఉంటుంది, చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు. దాని ప్రకారం ఇస్తే ఈజీ ఉంటుంది, మరి అట్లా ప్లాన్ చేయరాదు. అందరినీ మరి గుండెల్లో పెట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రభుత్వానికి కులాలు మతాలకు అతీతంగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటిది కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. బట్ యేసు ప్రభు దీవెన మీకు అందరికీ తెలుసు. మొదటి నుంచి కూడా ఈ ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ పరంగా, సేఫ్టీ పరంగా కానీ, రెండోది డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్లో కానీ ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ మీకు అందరికీ తెలుసు. మీ అందరికీ పర్సనల్ ఇన్వైట్ ఏంటంటే రేపు ఉప్పల్ బగాయత్లో ఫౌండేషన్ వేస్తుంది. దేశంలో రేపు మరి ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ వేస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా మీరు అక్కడ 2 acres ప్రైమ్ లొకేషన్, ప్రైమ్ సైట్ కూడా ఇచ్చిండ్రు. దానికి డబ్బులు కూడా అలొకేట్ చేసి 2 crores. కాబట్టి మన క్రిస్టియన్ భవన్ ఉప్పల్ బగాయత్ ఇంతకు
दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता से पूछगछ करने के लिए सीबीआई की एक टीम इतवार को सुबह 11 बजे बंजारा हिल्स में एमएलसी कविता की रिहाइशगाह पहुंची। सीबीआई के 5 अफसरान अंदर एक कमरे में कविता से पूछगछ की। मुलजिम का बयान कविता के सामने रखा जाएगा। अमित अरोड़ा के बयान की बुनियाद पर तफ्तीश की जाएगी और बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सीबीआई के एहलकार 2 गाड़ियों में कविता की रिहाइशगाह पहुंचे। हुकाम वकीलों की मौजूदगी में कविता से पूछगछ कर रहे हैं। इस पस मंजर में कविता के घर के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली शराब स्कैम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से सीबीआई की पूछगछ से पहले इनके मकान के करीब पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। पुलिस ने कविता के मकान के करीब बैरिकेड्स लगा दिए और किसी को भी इनके मकान के करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बीआरएस पार्टी के जराये के मुताबिक पार्टी कारकुनों को पार्टी के आला क़यादत की जानिब से हिदायत दी गई है कि वो कविता के मकान के करीब गैर ज़रूरी तौर पर जमा ना हों। लगा रहा हूँ। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी कल शाम आर&बी गेस्ट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी, टीआरएस, मजलिस और दीगर जमातें बीजेपी की ही टीम है। सदर जिला कांग्रेस मोहन रेड्डी के फर्जंद की शादी में शिरकत के बाद आज आर&बी गेस्ट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह बहबूद के लिए बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करदा सियाह बिलों की तायीद की थी और अब आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी निजामाबाद के निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री हल्दी बोर्ड की कुशादगी के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किया और तालामुड़ू संगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन को कौमी प्रोजेक्ट करार देने में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। విత్తనాలు ఎరువులు మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఏదైనా కారణం చేత పంట నష్టపోతే పంట బీమా పథకం లేదు తెలంగాణలో. ఒకవేళ రైతు అదృష్టం బాగుండి కాలం కలిసి వచ్చి పంట పండితే రైతు పండించిన పంట కొనుగోలు చేసే పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేవు. అది వడ్లైనా, కందులైనా, మిర్చి అయినా, పత్తి అయినా, సోయాబీన్ అయినా, మొక్కజొన్న అయినా, నిజామాబాద్ జిల్లాలో అత్యధికంగా పండించే ఎర్రజొన్నలైనా, చివరికి 10 లక్షల ఎకరాలలో పండించే చెరుకు ఫ్యాక్టరీలను తెరుస్తా అని చెప్పి రైతులను నట్టేట ముంచండి చంద్రశేఖరరావు గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు పండించే పంటకు బీమా లేదు, రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేదు. కానీ చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ ప్రభుత్వం వైఫల్యం ఎవరైనా రైతు చచ్చిపోతే 5 లక్షల రైతు బీమా పథకం ఉందంటున్నారు. నిజంగా ఎవరైనా వ్యవసాయం గురించి ఆలోచన చేసేవాడు పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధరిస్తాడు. ఏదైనా కారణం చేత పంట పండకపోతే దానికి బీమా పథకం ద్వారా రైతుకు పెట్టుబడి భరోసా కల్పించే విధంగా బీమా పథకాన్ని పెడతాడు. ఈ రెండు చేయకుండా ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్ల చచ్చిపోతే కుటుంబానికి 5 లక్షలు ఇస్తా అంటుంది. అంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రైతు సహాయం పొందాలంటే రైతు చచ్చిపోవాలి. ఇంతకంటే దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వము, ఇంతకంటే దివాళకోరు ఆలోచన ఎక్కడైనా ఉంటుందా?
కాబట్టి ఈరోజు చంద్రశేఖర్ द पीपल मार्ट के एम्प्लॉयज ने किया बड़े पैमाने पर हंगामा और मचाई तोड़फोड़। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट सोहेल होटल के पास मौजूद द पीपल मार्ट के एम्प्लॉयज ने इल्जाम आयद किया है कि इन्हें काफी महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही है। इससे कबल द पीपल मार्ट के जिम्मेदारान के खिलाफ इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और कंपनी के अहम जिम्मेदारान ने बतारीख 10 दिसंबर को तमाम मुलाजिमीन की तनख्वाहें देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे से तमाम जिम्मेदारान मुकर गए और तमाम मुलाजिमीन ने बरहमी का मुजाहरा पेश करते हुए पीपल्स मार्ट में ज़बरदस्ती दाखिल होकर सामान के साथ तोड़फोड़ की और तमाम सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बरहमी का मुजाहरा करते हुए तमाम एम्प्लॉयज़ ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा की जाए। कंपनी के अहम जिम्मेदारान जो कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो इसी तरह तमाम मुलाजिमीन को, जहां पर तकरीबन 66 पीपल्स मार्ट के शोरूम बताए जा रहे हैं, तमाम मुलाजिमीन को इनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए सता रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम मुलाजिमीन मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वहां के मुलाजिमीन ने मीडिया से बात करते हुए इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। मैं उपल का स्टाफ हूँ। उपल के स्टाफ की मेरी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है। 4 महीनों से फिर आ रहे, मेरी अगस्त की सितंबर की सैलरी पेंडिंग है, सबको फिर आ रहे। और सुबह में 2 बजे से लेके 10:30 को बुलाया, फिर क्या करे 1 बजे से प्रोटेस्ट करे। 1 बजे से देखो अब 4:53 हो रहे, 4:53 तक प्रोटेस्ट चला, तो अब हमको डेट दिए लास्ट 30 तक है फाइनल डेट बोल के। अब 30 तक आती नहीं देख नहीं मालूम, और उसमें से भी कट करके देते कहते। अब जो भी हुआ उसके बाद कट करके देते पैसे, ये वो बोल के झूठे बातें बोल के वो कर रहे, पैसे नहीं देना चाह रहे। लगा हम लोग घर में से टॉर्चर है, कॉलेज का फीस बनना है, बहुत प्रॉब्लम है। हम ना किसको बोल के बोलना सर देना है, कोई भी पैसे अभी तक नहीं दिए और इतना सता रहे कर रहे हैं। किसी के कर्जे बाकी है, किसी के EMI भरना है, बैंक वाले घरों पे आ जा रहे हैं, कर रहे हैं, पैसे अभी तक नहीं दिए। और जून 15 से मेरी ज्वाइनिंग डेट है, सितंबर को एंड करा मैं, जब से लेके अब तक 1 रुपया भी हाथ को नहीं आया। अब देते 10 को देते 5 को देते, पूरी डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले भी आए, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। आज DSP से लेटर हुआ, पूरा लेटर लिखा है, सिग्नेचर्स लिए 10 तारीख को देते बोल रहे हैं, और हर महीने को महीना ऑडिट होता, सब बराबर निकलता। अब बात जहाँ सैलरी की आया, हंगामा हुआ बोल के फिर से री अगेन ऑडिट करते बोल रहे हैं। कुछ भी शॉर्ट आया तो स्टाफ और मैनेजर की जिम्मेदारी है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। हर एक की सैलरी में से शॉर्टेज करते बोल रहे हैं। ऐसा कैसा करते, जब हम ना थे ही नहीं तो ऐसा कैसा कर सकते। हर एक का काम है जो ना, जो पैसे लिए जिसका देना है सो तो भाग गए, और पैसे ये 30 को बोले डेट पे डेट दिए, आज फाइनल हो चुका है। और पूरा पुलिस वाले भी आ गए, 15 बोले 10 बोले डेट आ गई, अभी भी ऊपर बोले, ऊपर 15 बोले, फिर 25 20 बोले, फिर 25 बोले। इस बार 30 को नहीं आई, क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। इस बार पैसे आना तो आना है, बात ख़त्म हो गई। 150-200 बच्चे हैं सर, हर एक के में पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। इतना स्टाफ का, इतने जनों का स्टेट का पैसा आना है, कब देते भाई? क्या 2 लाख रुपए नहीं है? हर एक को 40-45-50,000 बोले तो नहीं, बोले तो 2-3 करोड़ न्यू निकल लेते। हर एक का स्टोर का कौन इसको खोल के खामोश बैठेंगे? क्या मेहनत के पैसे खा रहे हैं? किसी का ऐसा उधार लेके नहीं कर रहे हैं कि लेके भाग जा रहे हैं, कर रहे हैं, हराम में नहीं पड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ले रहे हैं। हर एक को जिम्मेदारी है, कोई भी सामने वाला कब तक खामोश बैठेंगे? हर एक को जिम्मेदारी है, हर एक की घर गृहस्थी है, क्या कर सकते बोलो? आखिर एक ना एक दिन पानी सर के ऊपर है, उस पर सब्र रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, सीधा उसके बाद ख़त्म, तो पानी सर के ऊपर हो गया। हर एक उठना पड़ा, पैसे मिलना बहुत ज़रूरी है, और 30 को फाइनल हो गया, पैसे अमाउंट आना ज़रूरी है। और तो बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता। ये री-ऑडिट ये सब फालतू बहाना है, ये सब पैसे नहीं देना बोल के एक गैप दे रहे हैं, लगा टाइम ले रहे हैं। देखो अभी 30 को है, क्या हो सकता है देखो। मैं उसकी मदर हूँ, मैं ई स्टोर के, हाँ ई स्टोर की मदर हूँ, उसके बच्चे की मदर हूँ मैं। 5 महीने से पैसे नहीं दे रही, अम्मी डेट पे डेट दे रहे हैं, बोल तो मैं जाके सबके पूरे स्टाफ होंगे नहीं, मेहनत सैलरीज नहीं दे रही। कैशियर के हेड काउंटर है बच्चा मेरा, पैसे नहीं दे रहे। मंथली 1 मंथ बोले चलेगा, 2 मंथ बोले चलेगा, 4 मंथ 5 मंथ से वेट करी सर मैं पूरा दूसरी जगह बाहर से खर्चा करे। कर्जदार हम बैंक वाले हमारे घर पे आ रहे, हमको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सर, कहीं नहीं हुआ ऐसा। 40,000 रुपए आना है, 60-70 हज़ार दूसरों के आने के है भी। आप लोग कितने दिन से नहीं दे रहे हैं सैलरी? 6 महीने से नहीं। इससे पहले भी आप लोग आए थे ना?
उससे पहले भी आए थे, खाली डेट दिए फिर चले गए, खामोश बैठ के चले गए। ये 10 तारीख को क्या बोले उन्होंने, शुरू से उन्होंने 10 तारीख को क्या बोले, आप लोग आइए 10 तारीख को मिल जाता पैसा, बोले नहीं दे सके तो कुछ ना कुछ करो, आपकी मर्जी। मैनेजर का नाम क्या है, स्टोर मैनेजर कौन है? इब्राहिम। तो आप लोग आके इससे पहले भी नहीं बोले सैलरी कहीं नहीं दे रहे, क्या नहीं? बराबर पूछे, फिर डेट दिए उन्होंने, क्या बोल रहे? ये महीने ये डेट पे आपकी सैलरी आ जाती, बोले अकाउंट नंबर भी लिए, सब पूरे डिटेल्स लिए, हाँ हर तला से हर चीज से दे दिए, पूरे दे देने के बाद भेज दिया कर दिया, फिर गलती हुई बोले। कितने बच्चे ठहरे हुए इन लोगों की वजह से आए हुए हैं? पूरे सैलरी की वजह से है, पूरी सैलरी, पूरा स्टाफ है, एम्प्लॉय पूरे सैलरी के। आ जाओ। दिल्ली ईस्ट और इंडिया एक्रेडिया कंपनी से आने का है सैलरी, तो 1 हफ्ते में आएंगे बोल करके बोले, बात करें अभी 1 हफ्ते में आएंगे सैलरी। 6 महीने से दे रहे, सही बात है, वो टाई अप हुआ है कंपनी, ईस्ट और इंडिया कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप हुआ है, जिसका नाम एक्रेडिया है, तो टाई अप में थोड़ा देर हो गया, लेकिन अभी 1-2 भी बच्चे नहीं है ना साहब, 150 बच्चे। जी हो ना, 150 तो नहीं है, 150 नहीं है वो। हाँ, और दिल्ली से आना है सैलरी, वो इधर से आपके साथ नहीं कितने है। बच्चों की आना है? नहीं, यहाँ पे तो 50,000 लोग हैं, उनकी सैलरी आने का है। हाँ, तो अब से नहीं है, 6-6 महीनों की सैलरी। 6-6 महीने की नहीं है, 4 महीने 3 महीने ऐसा है सबकी। वो 6-6 महीने बोल रहे हैं ना, अभी 6-6 महीने बोल रहे हैं, 6-6 महीने बोल के बोल रहे हैं। तो कोई बच्चा जो है कि बेटी की जो है 2 महीने 3 महीने से कुछ नहीं मिली सैलरी, 21,000। वही तो बोल रहा हूँ मैं, 2 महीने की है, किसी की 1 महीने की है, किसी की 4 महीने की है, 6-6 महीने की नहीं है किसी की भी सैलरी। इससे पहले भी आप सैलरी इससे पहले भी हम नहीं कह रहे, वो दिल्ली से जो आता हम यहाँ पे बोल देते हैं। दिल्ली से बोलते अभी तो हो गया, अभी जाइए, अभी नहीं अभी हो गया, दिल्ली से होता हूँ, दिल्ली जो हेड ऑफिस है ना, जो हेड ऑफिस है वहाँ से आता, आप जाइए, आप दिल्ली को जाके आप बोलिए, आप दिल्ली से बात करिए, जाके आप दिल्ली में जाके आप पूछिए, मेन ऑफिस दिल्ली में इसका माध्यम। सैलरी का इशू तकरीबन 200 स्टोर का इशू है, ये जो पब्लिक ठहरे हुई है पूरी सैलरी के लिए ठहरे। का कहना है उनकी बच्ची को आपके रेफरेंस पे लगा है, तो हाँ रेफरेंस अपॉइंट इधर से कर रहे थे। हाँ मैं इत्तला करते गया, मगर डेटा बदलते जा रहे, खाली सैलरी नहीं मिल रही, खाली डेट मिल रही बस। आपसे कब से टच में लोग, अपॉइंट कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं जब से है। कहाँ पे? आपका जॉब वगैरह यहाँ पे नहीं है साहब, मेरा नाना नगर पे मैनेजर था मैं, मेरे कैशियर थे इन्हों बच्ची। आपकी सैलरी बराबर आ रही? नहीं मिली मेरी भी, 2 महीने की आने का है। 2 महीने की मेरी सैलरी आना है, जितने बैठे हुए यहाँ ठहरे हुए सबके सैलरी आने, 5 महीने 6 महीने। आओ महीने भाई सामने आओ। आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं? 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से रिस्पॉन्स कैसा? जब अच्छी आ रहा था भैया, 6-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। रीज़न क्या है? वो हमारी बेटी जो है तो जॉब कर रहे थे, 5 महीने से 10 तारीख को आओ, 15 तारीख को आओ, 20 तारीख को आओ, 21 तारीख को आओ। अब जो है ना उन्हें उसका ओनर का बेटा है, कहते गुंडों को बुला रहा, मारते तोड़ रहे बोल के, गुंडों को बुला के पूरा कैमरा उधर घुमाओ। बोलो। वो पूरे गुंडे मिलके जो है तो आके ठहरे, वो ओनर का दादा था, कहते उन्हें भाग गया। आपकी बच्ची की 21,000 रुपये। तो आप अब तक नहीं बोले? अब तक नहीं बोले, सिर्फ डेट लेके चले गए। हम उनको इससे पहले ही बोले, हम बोले देखिए थोड़े बहुत भी बच्ची की नहीं जी, 1 रुपया भी नहीं दी। क्या बोले आपको? डेट दिया खाली, 20 तारीख को आओ, 15 तारीख को आओ, 11 तारीख को आओ। हम वो तारीख को बराबर आए, पूछे इनको और फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे। आपकी बच्ची के पैसे अकेला बात है? और भी नहीं, तकरीबन जो है तो 60-70 आदमी है, तकरीबन हर स्टोर के जो है तो लोगों के पैसे बाकी है। आपकी बेटी की कितने महीने की सैलरी बाकी है? 21,000 रुपये आने का है, 2 महीने 5 महीने से 2 महीने की सैलरी के लिए फिर रहे हम। तो मेन ओनर कहाँ है? आप नहीं मिले? नहीं, अपॉइंट कलश वाले भैया मुकरम साहब है, ये जो जर्किन पे पट्टों की ठहरे ना, इन्हों अपॉइंट करे, और वहाँ का मैनेजर था खुद्दूस साहब, ये हमारी बच्ची को इन्होंने जो अपॉइंट करे। तो खुद्दूस भाई क्या हुआ, क्या इशू है? डेट है मेरी ये मंथ की 2022 जून 15, जब से चढ़ा अब तक पूरी मेरी सैलरी नहीं आई, 1 रुपया नहीं करे। शुक्र करो फिर भी मैनेजर अच्छे थे, जो भी हुआ उनसे करे। उन्होंने बोल रहे ये डेट देते, वो डेट देते, बोल रहे 5 मिनट भी दुकान लेट खोली तो वो आरिफ बहन का उसकी लाहौल वाला खत, मगर आरिफ बोलता 5 मिनट दुकान से कहीं को खोले। हाँ, अगर बोलता फ़ोन करके एक बड़े बात बहुत हो रहे हैं, कैमरे के सामने रहते, स्टाफ बैठा हुआ है, कैमरे के सामने नहीं दिखते, बोलते इतने दिन से खामोश कहीं को बैठे? अरे भाई पेशेंट से अल्लाह ऐसा नहीं बोले, पेशेंट से हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर रहता। उन्होंने बोल रहे हैं सैलरी नहीं देते। सैलरी कितने महीने? जून 15 से ज्वाइनिंग डेट है मेरी। 1 रुपया ढेला नहीं लगा हाथ को मेरे, 1 रुपया। जून 15 खामोश बैठे। वारिफ बोलता कैमरे में नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे। मैं वाला पैसे आप देते, इज्जत से भी आगे बात करें, हमको कोई शौक नहीं है लड़ने का करने का। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, उन्होंने खुद बोले पैसे नहीं दिए तो
हमारा आके गला पकड़ो, आप हमारे से बात करें। सैलरी देने वाले भी हमला ही छः बोल रहे हैं, तो ये कहाँ है पैसा, कहाँ है, कहाँ चले गया? शद्दाद सर बोल रहे हैं बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरा फ्लैट बेच के पैसे देता हूँ बोल रहे हैं अपने, कहाँ है पैसे, कहाँ है बोलो। फिर अकबर सर बोले नवंबर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग सुना तो ठहरो, ऐसा कैसा नहीं होता। अकबर सर बोले नहीं हम नहीं देते, हम क्या कर सकते। और मुकरम सर बोले बड़े तमीज़ की तमीज़ नहीं है आपको, हला हर चीज़ की तमीज़ है, हम हर चीज़ की तमीज़ करते हैं, वैसा नहीं, हर एक की रिस्पेक्ट है। जब इंसान खुद अपनी इज्जत उतारवे रहा तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता, चाहे मोमिन रहने दो नॉन मुस्लिम्स रहने दो, बात वैसी बड़ी बात नहीं है। जस्टिस रहता, सब खलास तज रहता। पैसे होना आज पानी सर के ऊपर हो गया, चलो भाई ना आज ने तो कल कर लें, तो उम्मीद रहती है भाई एक इंसान को। लोगों की सैलरी बाकी पूरे तकरीबन हैदराबाद में जितने भी स्टोर है, एक जनों की भी स्टोर टोटल हैदराबाद में तकरीबन 66 स्टोर है, हर एक की सैलरी नहीं बोले तो भी 60,000 तो मिनिमम आना है। कोई भी कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं करा करे 30 तारीख नवंबर 30 को चादर घाट PS क्या रिस्पॉन्स? ऐसा पुलिस वाले खुद धमका के गए 30 को बोल के, अब पुलिस वालों को तो नहीं मालूम 30 को देते, 10 तारीख को देते बोल के। उसके बाद PS को नहीं गए? नहीं हमला तो नहीं गया, मैं तो दूसरी जगह था मैं इस वक्त, या मेरे को पूरी न्यूज़ आती रहती डेली की, इसलिए बोले नहीं ये तो अगर आप लोग क्या कर सकते करो बोले। अब आप लोगों का क्या है, अब क्या करना चाह रही है, आपका मुतालिबा क्या? अमाउंट दे दो भाई, हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं भाई, अमाउंट दे दो, हम लोग काम इज्जत से चल जाते। देखो हम लोग क्या सोचे, चलो भाई ना पैसे नहीं दे रहे हैं। स्टोर मैनेजर से किसी से बात हुई कुछ? हाँ स्टोर मैनेजर खुद बोल रहे हैं, स्टोर मैनेजर को खुद धमकियाँ दिए, नहीं देते भाई बच्चों को बोल दिए, कहाँ से लग गया? ओनर से आप लोग की बात नहीं हुई? मेन ओनर ये छः लगा जो भी है मुकरम इन से भी हमारे लगाए, जॉब लगाई जो भी इनसे बताए बोला इन से कंपनी से नहीं है। स्टोर के मेन ओनर बोल रहा हूँ, जो मिस्टर हामिनी रेड्डी बोलकर स्टोर के ओनर है, उन्होंने क्या बोल रहे हैं? उनके खुद 25 लाख डूबे हुए हैं स्टोर पे, पैसा नहीं आ रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे, माल नहीं आ रहा, क्या आ रहे हैं आते बोल के कस्टमर जहर खा के मर जा रहा, मगर पैसा नहीं आया, फिर स्टोर पूरा भरे हुआ कैसा चल रहा है? ये अब है, ये सब अब है, ये स्टोर भरा हुआ का है, भरा हुआ है, ऐसा तो हमारे पास भी है। ये सब ये दालचीनी का पट्टा है, ये दाला वाला कुछ नहीं होते, माल कहाँ है लेने के दिले, जो चीज़ इंसान को जो ज़रूरत रहती वही नहीं रहता, जब भी कस्टमर आता वो नहीं रहता। इसलिए मेरे को मेरा अमाउंट दे दो, मैं खलास क्लोज द मैटर, मेरे को होना। अमाउंट नहीं मिला उन्होंने बोले, और वो आपके हिसाब से 150 बच्चे बोल रहे हैं आप कि कितनी पड़ती सैलरी? करीब 40,000 रुपये पड़ती, किसी की 30,000 रुपये पड़ती, मैक्स मैनेजरों की हद तक गए तो 70,000 पड़ती एक मैनेजर की, तो नहीं बोले कि कितने लाखों का पैसा करोड़ों तक चल जाती है। एक LBR स्टोर की बच्ची है, उसके 1.5 लाख रुपए देना है कहते, कभी 1.5 लाख जिंदगी में देखे ओके आते, 1.5 लाख नहीं आते, फिर कहाँ से होता ये सब? नहीं होता। जिला विकाराबाद के परगी लखनऊपुर गांव में आत्मीय सम्मेलन तकरीब में परगी MLA कुपुला महेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि TRS पार्टी इख्तिदार में आने के बाद कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों को नाफिज कर रही है। इन स्कीमों से मुतासिर होकर आज पूरा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम और किसानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा तौर पर काम कर रही है। MLA कुपुला महेश रेड्डी ने कहा कि अब तक 100 से ज्यादा फलाही और तरक्याती स्कीमें मुतारुफ और अमल में लाई गई हैं। మన యొక్క సమస్యను గ్రామాల్లో ఉన్న మనకు ఎన్ని సమస్యలున్నా మన నేత మనకు అండగా ఉంటూ మేమున్నా అని చెప్పేసి మన నాయకులందరూ కూడా మన వెన్నంటి ఉండి మనం ప్రోత్సహిస్తూ మన సమస్యలందరినీ కూడా ఒకటొకటిగా పరిష్కరించుకుంటూ వస్తున్నారు। ఇంకా మున్ముందు జై జై తెలంగాణ। వెంకటయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి రంగంపల్లి కూడా మరి TRS పార్టీకి ప్రజలు బమ్రతం పడుతున్నారంటే దానికి కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల్లో జనరల్గా ఎప్పుడైనా చూస్తే ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా ఏ పార్టీ అయినా ఒక మేనిఫెస్టో అని పెడుతుంది, కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పాలి, ఇవన్నీ మేనిఫెస్టోలు ప్రజల అవసరాలను ఎప్పుడప్పుడు తీర్చే విధంగా మనం పనిచేయాలి, అదే మన మేనిఫెస్టో అని చెప్పడం అన్నీ కూడా ఇలా మీరు చూస్తున్నారు। ఇతర రాష్ట్రాలను పోల్చుకుంటే మన రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి సంక్షేమాలు, మన రాష్ట్రంలో పెట్టినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, ఏ దేశంలో కూడా లేదు, మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు। ఇలా ప్రతి ఇంటికి కూడా తక్కువలో తక్కువ 5-6 సంక్షేమాలు అందిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం। ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక పూట అవుతుంది, మీ అందరు కూడా తెలుసు। కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం ఒకటే, ప్రతి ఇంటికి కూడా ఆర్థికంగా ఎదిగే విధంగా ఎన్నో సంక్షేమాలు చేస్తున్నాం। కానీ దీన్ని అందరం కూడా మనం మరి ఎక్కడ ఉన్నా మనం చర్చ చేయాలి। మన గ్రామంలో మరి ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమాలు వస్తున్నాయి, మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ ప్రజలకు చెప్పడం అవన్నీ కూడా బాధ్యత మీ అందరిది। కాబట్టి మీరందరూ కూడా మరి గడిచిన ఎన్నికల్లో అన్నిట్లలో కూడా మనం గెలుస్తున్నాం, మళ్ళీ మనకు ఎన్నికల సందర్భం రాబోతుంది। ఇంకా ఒక
ఒక సంవత్సరం అంటే దాదాపు 9-10 నెలల్లో మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తాయి. దాని తర్వాత नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमपुर डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.